نواسۂ رسول حضرت امام حسین ابن علی کی ولادت اسلامی تاریخ کے مطابق 3 شعبان 4 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 11 جنوری 626 عیسوی کو سعودی عربیہ کے شہر مدینہ منورہ میں ہوئی۔ حضرت امام حسین کے والد کا نام حضرت امام علی ابن ابی طالب اور آپ کی والدہ کا نام حضرت جناب سیدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے 4 صاحبزادے اور 2 صاحبزادیاں تھیں، جن میں سے آپ کے سب سے پہلے صاحبزادے کا نام علی ہے، جنہیں علی زین العابدین بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے صاحبزادے کا نام بھی علی ہے، جنہیں علی الاکبر بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے صاحبزادے کا نام بھی علی ہے، جنہیں علی الاصغر بھی کہا جاتا ہے۔ اور چوتھے صاحبزادے کا نام جعفر ہے، جنہیں جعفر ابن حسین بھی کہا جاتا ہے۔ اور آپ کی پاک و پاکیزہ صاحبزادیوں کے نام حضرت بی بی سیدہ سکینہ اور حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الصغریٰ ہیں۔ اسی طرح جب اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو تخلیق کائنات کے بعد اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کے جسم کو بنایا، اور آدم کے جسم کو بنانے کے بعد اللہ نے آدم کے جسم میں اپنی روح پھونکی، تو روح پھونکنے کے بعد آدم کا جسم زندہ ہو گیا۔ جیسے ہی آدم کا جسم زندہ ہوا تو زندہ ہونے کے بعد جیسے ہی آدم نے اس کائنات میں اللہ کی عرش پہ پہلی مرتبہ اپنی آنکھ کھولی تو آنکھ کھولنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ کے عرش پہ 5 ناموں کو لکھے دیکھا، اور انہی 5 ناموں میں سے ایک نام حسین بھی تھا۔ جیسے ہی آدم نے نام حسین کو اپنی آنکھ سے دیکھا تو آدم کا وجود زور زور سے کانپنے لگا، اور اچانک آپ کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگے۔ جیسے ہی آدم نے اپنی آنکھ میں آنسو دیکھے تو آدم علیہ السلام فوراً جبرائیل سے یہ پوچھنے لگے کہ اے جبرائیل، جب سے میں نے اللہ کی عرش پہ اپنی اس آنکھ سے اس ایک نام کو لکھے دیکھا ہے تب سے میری آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر میری آنکھ سے آنسو نکل کیوں رہے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل نے آدم علیہ السلام کو یہ بتایا کہ اے آدم، اللہ نے جن ہستیوں کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا اور اس کائنات کو ایک وجود میں لایا تو اللہ نے ان ہستیوں کے نور کو تیرے قلب میں رکھا ہے، اور اے آدم، یہ نام حسین اسی ہستی کا نام ہے، اسی نور کا نام ہے کہ جو اللہ کی زمین پہ تیری اولاد میں سے ہوگا۔ اور اللہ نے جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا ہے اور تجھ میں سے جن باقی انسانوں کو بھی پیدا کرے گا، تو یہ حسین اللہ کے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ کی محبت میں انتہا کرے گا، اور اللہ کی محبت میں ہی اپنا سب کچھ قربان کر کے بے دردی سے شہید کیا جائے گا۔ بس اے آدم، چونکہ تیرا ضمیر زندہ ہے اور اللہ نے تجھے باضمیر مٹی سے پیدا کیا ہے، تو تیرے نزدیک اس بات کا علم نہ ہونے کے باوجود بھی کہ تیری آنکھ سے آنسو کیوں نکلے، چونکہ تو باضمیر ہے اور تیرا ضمیر زندہ ہے، بس اسی وجہ سے تیری آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ اور اے آدم، اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت تک تیری اولاد میں جو باضمیر ہوگا تو حسین کا نام سنتے ہی اس کی آنکھ سے بھی آنسو نکل آئیں گے، اور اللہ کی ذات نام حسین کو قیامت تک ہر باضمیر انسان کے لیے زندہ رکھے گی۔ بس اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اللہ نے آدم کی تخلیق کے بعد نور حسین کو آدم علیہ السلام کی جبی میں رکھا۔ اسی طرح کرتے کرتے یہ نور آدم علیہ السلام سے حضرت امام علی ابن ابی طالب کی جبی تک پہنچا، اور اسی طرح حضرت امام علی ابن ابی طالب کے ذریعے نور حسین کا اس زمین پہ ایک وجود کی شکل میں ظہور ہوا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین کا نور اس زمین پہ آیا تو اللہ نے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ جبرائیل کو یہ حکم دے کر زمین پہ بھیجا کہ اے جبرائیل، جا زمین پہ اور زمین پہ جا کر میرے محبوب کو ان کے نواسے کی مبارک دے اور انہیں میرا یہ پیغام پہنچا کہ اے میرے حبیب، جس مقصد کے لیے میں نے آدم کو پیدا کیا اور جس مقصد کے لیے میں نے 1,24,000 پیغمبروں کو اپنی زمین پہ بھیجا، تو اے میرے حبیب، آپ کا یہ نواسا اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زمین کربلا میں مجھ سے محبت کی انتہا کرے گا۔ اور اے میرے حبیب، جیسا کہ میں نے آدم کی تخلیق سے بھی ہزاروں سال پہلے آپ کے نام کو محفوظ رکھا تھا، تو بالکل اسی طرح میں نے آپ کے نواسے کے نام کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ آپ اپنے اس نواسے کا نام مجھ اللہ کے حکم سے حسین رکھیں۔ تو پھر اسی طرح حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے ہزاروں فرشتوں کے ساتھ زمین پہ آتا ہے اور اللہ کے حبیب کو اللہ کا یہ پیغام سناتا ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول اپنے نواسے کی ولادت پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے اس کائنات کو تخلیق کیا تو اللہ نے میرے اس نواسے حسین کو اس مقصد کے لیے چنا ہے، اور میرا یہ نواسا حسین تخلیق کائنات کے اس مقصد کو پورا کرے گا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو اس زمین پہ بھیجا۔ اللہ کے رسول اللہ کے اس پیغام پہ
अपने नवासे की विलादत की खुशी मनाते हैं। लेकिन इसी खुशी के साथ साथ जिब्राइल अल्लाह के रसूल को आपके नवासे की उस बेदर्दी से शहीद किए जाने की खबर भी सुनाता है कि जिस बेदर्दी से हुसैन इब्ने अली को 3 दिन तक भूखा प्यासा रहने के बाद जमीन करबला में बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। बस ये खबर सुनते ही अल्लाह के रसूल की आंख से आंसू निकलते हैं और अल्लाह के रसूल अपने नवासे हुसैन के नन्हे से गले पे प्यार करते हैं और फिर लोगों से ये फरमाते हैं कि आए लोगों, देखो इसे, ये मेरा नवासा हुसैन है। जिसने मेरे हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, और जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की तो उसने अल्लाह से मोहब्बत की। जिसने मेरे हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी की, और जिसने मुझ मोहम्मद से दुश्मनी की तो उसने अल्लाह से दुश्मनी की। ऐ मेरे परवरदिगार, तू उससे मोहब्बत रख जो मेरे हुसैन से मोहब्बत रखे, तू उससे दुश्मनी रख जो मेरे हुसैन से दुश्मनी रखे। तो बस इसी तरह अल्लाह की पाक जात खुद अपने नबी के नवासे का नाम हुसैन रखती है। और फिर तारीख ने भी ये लिखा कि नाम हुसैन हुसैन इब्ने अली से पहले इस रुए ज़मीन पे किसी का भी न रखा गया। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि शायद अल्लाह के नबी और इनके घर वाले भी हमारे ही घर वालों की तरह हैं। तो अल्लाह ने गजबनाक होकर जिब्राइल को यह हुक्म दिया कि आए जिब्राइल, जा जमीन पे और जमीन पे जाकर मेरे नबी के जरिए लोगों को ये बता कि आए लोगों, तुम ये समझते हो कि मेरे नबी तुम्हारी तरह है? अल्लाह ने तुम्हें गुनाहों की मिट्टी से पैदा किया है और अपने हबीब को अपने नूर के जरिए पैदा किया है। बस मेरा नबी और इनका घराना हर गुनाह से पाक है। और इसी तरह अल्लाह ने पंचतन पाक की शान को बयान करने के लिए, जिनमें हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली भी आते हैं, तो अल्लाह ने इन हस्तियों की शान में अपने कुरान में सूरह अहज़ाब में आयत ततहीर को नाजिल किया और लोगों को अल्लाह के हबीब और अल्लाह के हबीब के घराने की इज्जत और अजमत का बताकर उस वक्त के जाहिल लोगों के मुंहों को कुरान की आयत के जरिए बंद करवाया, ताकि ये लोग अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के घराने का एहतराम करें। इसी तरह जब हजरत इमाम हुसैन की उम्र करीबन 5 साल हुई तो इस्लामी तारीख के मुताबिक 24 जुल्हज 9 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 3 अप्रैल 631 ईस्वी को मुबाहिला के मौका पर अल्लाह ने लोगों को सरेआम सबके सामने पंचतन पाक की इज्जत और अजमत का बताने के लिए सूरह आले इमरान की आयत 61 को नाजिल करके अपने हबीब से ये फरमाया कि आए मेरे हबीब, आप मुनकिरों से कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो तुम अपने बेटे लाओ, हम अपने बेटे लाते हैं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। तुम अपने मर्द लाओ, हम अपने मर्द लाते हैं। और फिर लोगों ने भी ये देखा कि कुरान में जहां बेटों का जिक्र है तो उन बेटों की जगह अल्लाह के नबी अपने हसन और हुसैन को लेके जाते हैं। और इसी तरह अल्लाह अपने कुरान में जिक्र हुसैन को बयान करके लोगों को हुसैन इब्ने अली की अजमत का बताता है कि आए लोगों, मेरे नजदीक हुसैन मेरे नबी का नवासा नहीं बल्कि मेरे नबी का बेटा है। जिसने मेरे नबी के बेटे से मोहब्बत की तो उसने मुझ अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने मेरे नबी के बेटे से दुश्मनी की तो उसने मुझ अल्लाह से दुश्मनी की। इसी तरह फिर हजरत इमाम हुसैन का बचपन अल्लाह के रसूल के साया मुबारक में गुजरता रहता है। जब हजरत इमाम हुसैन की उम्र करीबन 7 साल हुई तो इस्लामी तारीख के मुताबिक 28 सफर 11 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 25 मई 632 ईस्वी को अल्लाह के रसूल अल्लाह के नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अल्लाह के नबी के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के करीबन 3 महीने के बाद इस्लामी तारीख के मुताबिक 3 जमादी उस्तानी 11 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 26 अगस्त 632 ईस्वी को आपकी वालिदा हजरत सैयदा फातिमा बिन्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गईं। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और एक दिन कुछ लोग हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में हाजिर होते हैं। तो इनमें से एक शख्स खड़ा होकर हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से ये कहता है कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, आप कहते हैं कि मुझसे जो भी सवाल करना है वो कर लो, आप मुझे ये बताएं कि मेरे सर के बाल कितने हैं और मेरी दाढ़ी के बाल कितने हैं। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से फरमाते हैं कि ऐ शख्स, मुझे अल्लाह के नबी ने तेरे बारे में बताया था, तेरे सर के हर एक एक बाल के साथ एक एक फरिश्ता है जो तुझ पे लानत करता है, और तेरी दाढ़ी के हर एक एक बाल के साथ एक एक शैतान है जो तुझे गुमराह करता है। ऐ शख्स, मैं देख रहा हूँ कि तेरे बेटे के घर में एक बच्चा पैदा होगा जो मेरे हुसैन को ज़मीन करबला में बेदर्दी से शहीद करेगा।
इसी तरह कुछ ही अरसे के बाद जब हजरत इमाम हुसैन अपनी जवानी की उम्र को पहुंचे तो आपके वालिद हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने आपकी शादी बादशाह यज़द की बेटी हजरत सैयदा शहरबानो से कर दी, जिनमें से आपके एक साहबजादे हुए जिन्हें लोगों ने हजरत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन के नाम से पुकारा। चूंकि हजरत इमाम हुसैन एक नूरानी हस्ती हैं, तो इसी वजह से अल्लाह ने आपका जिक्र दूसरी आसमानी किताबों में भी किया है। तो रात में आपको शब्बीर के नाम से पुकारा गया है, जबकि इंजील में आपको ताब के नाम से पुकारा गया है और कुरान में आपको अल्लाह के नबी के बेटे के अंदाज से पुकारा गया है। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन ने 32 साल की उम्र में जंगे जमल, 33 साल की उम्र में जंगे सफीन और 34 साल की उम्र में अपने बाबा अली इब्न अबी तालिब के साथ मिलकर जंगे नहरवान भी लड़ी और दुश्मन खुदा को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी तरह इसके बाद जब हजरत इमाम हुसैन की उम्र करीबन 36 साल हुई तो आपके बाबा हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब को इस्लामी तारीख के मुताबिक 21 रमजान 40 हिजरी और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 28 सितंबर 661 ईस्वी को मस्जिद कूफा में जहर आलूद तलवार के वार से शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद वक्त के इमाम हजरत इमाम हसन इब्न अली बने, लेकिन यजीदियों ने हजरत इमाम अली की शहादत के 9 साल बाद हजरत इमाम हसन को भी जहर देकर बेदर्दी से शहीद करवा दिया। हजरत इमाम हसन की शहादत के बाद आपके छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन इस दुनिया में बहुत अकेले और तन्हा रह गए और उस वक्त के बहुत बड़े बड़े लोग जो कि बहुत बड़े दीनदार भी थे, तो वो दीनदार लोग भी दुनिया की ऐशो इशरत और दुनिया की लज्जतों को देखकर गुमराही के रास्ते पे चलने लगे। तो बस वक्त के इमाम ने ये इरादा किया कि वो अपनी सारी जिंदगी अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने में लगा देंगे और इसी तरह हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने लगे और अल्लाह के सच्चे दीन को फैलाने लगे। इधर अभी हजरत इमाम हुसैन अपने नाना की उम्मत की इस्लाह कर रहे थे तो दूसरी तरफ लोगों ने यजीद को वक्त का हाकिम बना दिया। यजीद ने हाकिम वक्त बनते ही ये हुक्म जारी किया कि कोई दीन नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई नबी नहीं, ये इस्लाम सब झूठ है। आज के बाद वही दीन होगा, वही कुरान होगा जो मैं कहूंगा, और अगर आज के बाद किसी ने भी मेरे हुक्म का इनकार किया या फिर मेरी बैत करने से इनकार किया तो मैं उसे तड़पा तड़पा कर इस जमीन की सफाई हस्ती से ही मिटा दूंगा। उस वक्त के हजारों लोग यजीद के डर, खौफ, उसकी दौलत, ताकत, हुकूमत और फौज को देखकर यजीद की बैत करने लगे। दूसरी तरफ जब असहाबे रसूल और बाकी सब मुसलमानों ने ये देखा कि यजीद ने तो इस्लाम के खिलाफ बगावत कर दी है और यजीद तो इस्लाम को खत्म कर देना चाहता है, तो हजारों लोग हजरत इमाम हुसैन से ये कहने लगे कि ए नवासा रसूल, ए वक्त के इमाम, आपके नाना का दीन खतरे में है। यजीद ने अलल ऐलान ये कह दिया है कि इस्लाम एक झूठा दीन है और यजीद अब इस्लाम को खत्म करना चाहता है। ए नवासा रसूल, हम सब मुसलमान इसी वक्त आपके हाथ पे आपकी बैत करते हैं, हम सब आपके साथ मिलकर यजीद के खिलाफ जंग करके इस मलून को वासिल जहन्नुम करना चाहते हैं। तो बस उस वक्त के लोग मदीना में यजीद के खिलाफ हजरत इमाम हुसैन की बैत करने लगते हैं। जब यजीद को इस बात का इल्म हुआ कि मदीने के लोग मेरे खिलाफ हुसैन की बैत कर रहे हैं तो यजीद ने मदीना के हाकिम को यह खत लिखा कि आए वली, तू मेरी तरफ से फौरन हुसैन इब्न अली से मेरी बैत ले। अगर हुसैन मेरी बैत नहीं करता तो उसे बेदर्दी से कत्ल कर दे, मुझे उसके कत्ल का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जैसे ही यजीद के हुक्म पे मदीना के हाकिम ने हजरत इमाम हुसैन से यजीद की बैत लेना चाही तो हजरत इमाम हुसैन ने मदीना के हाकिम से ये कहकर यजीद की बैत करने से साफ साफ इनकार कर दिया कि ऐ वलीद, क्या तू मुझे नहीं पहचानता और यजीद की करतूतों को नहीं जानता? अगर मुझ जैसा इमाम वक्त ही यजीद की बैत करता है और हक को बातिल के आगे झुका देता है तो कयामत तक के लिए हक कभी भी बातिल पे वाज़े ही ना होगा। और अगर मुझ जैसा इमाम वक्त ही यजीद की बैत करेगा तो मेरे नाना की उम्मत ये कहेगी कि अगर हुसैन इमाम वक्त होने के बावजूद भी यजीद की बैत करता है तो हमें भी यजीद की बैत करनी चाहिए। और इसी तरह मेरी बैत की वजह से ही ज़मीन पे हक को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा। ऐ वलीद, यजीद से कह दे कि हुसैन अपने नाना के दीन के लिए अपना सर कटा सकता है लेकिन कभी भी यजीद जैसे के हाथ पे बैत नहीं कर सकता। और इसी तरह इमाम वक्त हुसैन इब्न अली के इस इनकार की वजह से ही फौजी यजीद मदीना में ही इमाम हुसैन के कत्ल की प्यासी बन जाती है। तो जैसे ही नवासे रसूल को इस बात का इल्म हुआ तो नवासे रसूल ने अपने नाना के दीन की हिफाजत के लिए यजीद के खिलाफ अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर मदीने से मक्का की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी। जैसे ही नवासे रसूल अल्लाह के घर काबा में पहुंचते हैं तो काबा में पहुंचने के बाद वहां के लोग आपका खूब इस्तकबाल करते हैं और फिर नवासे रसूल मक्के में भी जगह जगह
अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने की कोशिशें करते रहते हैं, और इन्हीं कोशिशों के दौरान हजारों लोग हजरत इमाम हुसैन को कूफा से ये खत लिखते हैं कि ऐ नवासा रसूल, ऐ वक्त इमाम, हम यजीद के खिलाफ आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर यजीद के खिलाफ जंग करना चाहते हैं। आप मक्के को छोड़कर हमारी इस्लाह करने के लिए हमारे शहर कूफा चले आइए। इसके बाद वो फौजे यजीद जो कि दुनिया की दौलत और दुनिया की लालच में अपने जमीरों को बेच चुकी होती है, तो फौजे यजीद ये इरादा करती है कि हम हुसैन को मक्के में ही सरेआम लोगों के सामने इस बेदर्दी से कत्ल करेंगे कि मक्के के लोग आले नबी औलाद अली की ताजीम करना ही भूल जाएंगे, और हुसैन के कत्ल के बाद हम काबा की तौहीन करेंगे, मुसलमानों की तजलील करेंगे और मुसलमानों से जबरदस्ती यजीद की बैत लेंगे, और जो यजीद की बैत करने से इनकार करेगा तो उसे भी हुसैन की तरह ही बेदर्दी से कत्ल कर देंगे। दूसरी तरफ जैसे ही नवासे रसूल हुसैन इब्न अली को इस बात का इल्म होता है कि फौजे यजीद मुझे अल्लाह के घर काबा में कत्ल करके काबा की तौहीन करना चाहती है, तो नवासा रसूल अल्लाह के घर काबा की हुर्मत को बचाने के लिए अपने असहाब, अपनी बहनों बेटियों को इकट्ठा करते हैं और कूफा के लोगों की दावत पर मक्का से अपना घर बार, अपना सब कुछ छोड़कर कूफा की तरफ सफर करना शुरू कर देते हैं। हजरत इमाम हुसैन मक्का से कूफा के रास्ते में 18 मुख्तलिफ मुकामात पे रुकते हैं और हर मुकाम पे रुककर अपने नाना की उम्मत को ये बताते रहते हैं कि आए मुसलमानों, यजीद तुम्हारे नबी के दीन का दुश्मन है, तुम जो नमाज पढ़ते हो, अल्लाह पे ईमान रखते हो, वो इसी ईमान को खत्म करना चाहता है। मेरा मकसद मेरे नाना के दीन की हिफाजत करना है, हुसैन रहे या ना रहे, अल्लाह का दीन ता कयामत रहेगा। इसके बाद जैसे ही इमाम वक्त अभी कूफा के नजदीक ही पहुंचते हैं तो फौजे यजीद को यह खबर मिलती है कि हुसैन कूफा पहुंच रहा है, और कूफा पहुंचने के बाद ये कूफियों के साथ मिलकर यजीद के खिलाफ जंग करना चाहता है। तो फौजे यजीद 2 मुहर्रम 61 हिजरी को आगे बढ़ती है और रास्ते में ही करबला के मुकाम पे हजरत इमाम हुसैन इब्न अली और आपके काफिले वालों का रास्ता रोक लेती है और नवासे रसूल से ये कहती है कि आए हुसैन, हमें यजीद का ये हुक्म है कि हुसैन से कहें कि वो यजीद की बैत करे, अगर हुसैन यजीद की बैत नहीं करता तो हुसैन को और हुसैन के घर वालों को तड़पा तड़पा कर इस जमीन पे कत्ल कर दे। आए हुसैन, अगर तुमने यजीद की बैत ना की तो हम तुम्हारी लाशों को इस जमीन की सफाई हस्ती से ही मिटा देंगे। तो नवासा रसूल इमाम हुसैन इब्न अली यजीदियों से ये फरमाते हैं कि ऐ फौजे यजीद, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, उस अली का बेटा हूँ कि जिस अली के बारे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। आए फौजे यजीद, क्या तू ये चाहती है कि हक बातिल की बैत कर ले? हुसैन अपने नाना के दीन के लिए अपना सर कटा सकता है, लेकिन अपना हाथ यजीद जैसे के हाथ पे रख के उसकी बैत नहीं कर सकता। इसी तरह वक्त गुजरता रहता है और फौजे यजीद दिन ब दिन हजरत इमाम हुसैन पे जुल्म सितम बढ़ाती रहती है। जब फौजे यजीद ने ये देखा कि हम हजारों की फौज और हुसैन से चंद गिने चुने लोगों के साथ, इसके बावजूद भी हुसैन यजीद की बैत नहीं करता, तो फौजे यजीद ने 7 मुहर्रम के दिन अल्लाह के नबी के नवासे नवासियों पे नहर फुर्रात का पानी बंद कर दिया। इसके बावजूद भी जैसे ही फौजे यजीद ने ये देखा कि पानी बंद करने के बावजूद भी हुसैन यजीद की बैत नहीं कर रहा, तो 9 मुहर्रम के दिन फौजे यजीद ने नवासे रसूल के हेमों पे हमला करना चाहा। तो हजरत इमाम हुसैन ने गाजी अब्बास को अपने पास बुलवाया और फरमाया कि ऐ अब्बास, तू फौजे यजीद के पास जा और उन्हें मेरा ये पैगाम दे कि आज की रात को हम अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहते हैं, हम अपने अल्लाह से राज़ो नयाज की बातें करना चाहते हैं, लिहाजा आज रात हम जंग नहीं चाहते। तो हजरत गाजी अब्बास फौजे यजीद के पास पहुंचते हैं और इमाम वक्त का पैगाम फौजे यजीद को सुनाते हैं। तो फौजे यजीद ये पैगाम सुनने के बाद हजरत गाजी अब्बास से कहती है कि ऐ अब्बास, हुसैन से कहना अल्लाह की इबादत के अलावा यजीद की बैत करने का भी सोचे। हुसैन के पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है, वरना सुबह होते ही तुम सबको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा। तो ये सुनते ही गाजी अब्बास जल्लाल में आते हैं और यजीदियों से ये फरमाते हैं कि ऐ खुदा के दुश्मनों, तुम आज रात तक के वक्त की बात करते हो? खुदा की कसम, अगर मुझे मेरे मौला हुसैन तुम्हें वासिले जहन्नुम करने की सिर्फ इजाजत दे दें तो मैं तुम्हारे पास आज रात तक के वक्त को भी ना छोड़ूं। हुसैन मेरे वो मौला हैं कि जो वक्त की भी तकदीरें बदल देते हैं, और तुम मेरे मौला हुसैन को वक्त देने की बात करते हो। इसी तरह बस 9 मुहर्रम की रात का वक्त आता है। हजरत इमाम हुसैन अपने सहाब को इकट्ठा करते हैं और सबसे ये फरमाते हैं कि ऐ औलाद रसूल से मोहब्बत रखने वालों, फौजे यजीद मेरे खून की प्यासी है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। मैं अपनी हुज्जत तुम सब पे तमाम करता हूँ, तुम सब अपने अपने घरों को, अपने अपने शहरों को वापस लौट जाओ। खुदा की कसम, तुम्हारी जन्नत का जामिन मैं हूँ। कयामत के दिन मैं तुम्हें अपने नाना से शहादत का रुतबा और जन्नत का मुकाम लेके दूंगा। इसी तरह फिर तारीख ने भी
ये लिखा कि सब के सब लोग नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली के कदमों में गिरकर उनके कदमों में ही शहीद होने का वादा करते हैं, और फिर नवासे रसूल अपने चाहने वालों को अपने इल्मे गैब के जरिए इनकी आंखों के सामने ही इन्हें जन्नत में इनके मुकामात दिखाते हैं, और फिर फरमाते हैं कि ऐ मेरे चाहने वालों, ये सब वो मुकामात हैं कि जो तुम सब के लिए सिर्फ एक दिन की दूरी पे मौजूद हैं। कल के बाद ये सब मुकामात अल्लाह की तरफ से तुम्हें अल्लाह की जन्नत में दिए जाएंगे। तो जैसे ही सब असहाब जन्नत में अपना अपना मुकाम देखते हैं तो शहादत की तड़प में 9 मुहर्रम की सारी रात को जाग कर बेसब्री से 10 मुहर्रम की सुबह का इंतजार करते हैं। जैसे ही 10 मुहर्रम की सुबह आती है तो नमाज फज्र में ही फौज यजीद नवासे रसूल हुसैन इब्ने अली पे हमला कर देती है। करबला का एक एक नौजवान हुसैन इब्ने अली के कदमों पे कुर्बान होता जाता है। कभी हुर का लाशा आता है, कभी अली अकबर का लाशा आता है, कभी अली असगर के गले पे तीर लगता है, तो कभी कासिम के टुकड़े मिलते हैं। नवासे रसूल सारा दिन कभी अपने जवान बेटे के टुकड़े उठाते हैं तो कभी अपने जवान भाई गाजी अब्बास के कटे बाजू। जब मैदान करबला में करबला का एक एक नौजवान इमाम पे कुर्बान हो जाता है तो नवासे रसूल अपने घर वालों को अपनी आखिरी वसीयत करते हैं और मैदान जंग में आकर फौज यजीद से ये कहते हैं कि ऐ मेरे नाना की उम्मत, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते कि मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ कि जो नमाज में रसूल अल्लाह के कंधों पर सवार होता था। मैं वो हूँ कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जिसने हुसैन से जंग की उसने मुझ मोहम्मद से जंग की, जिसने मुझ मोहम्मद से जंग की तो उसने अल्लाह से जंग की। आए मुसलमानों, क्या तुम उस यजीद का साथ दे रहे हो कि जो तुम्हारे ही दीन का दुश्मन है? आए लोगो, हुसैन अल्लाह के दीन का मुहाफिज है। हुसैन रहे या ना रहे, अल्लाह का दीन ता कयामत रहेगा। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता कि तुम अल्लाह के सच्चे दीन पे चलो। अगर आज हुसैन यजीद की बैत करेगा तो कयामत तक के लिए हक कभी भी बातिल पे बाज़ ही ना होगा। मैं कभी भी यजीद की बैत नहीं करूंगा। आए लोगो, तुम सब दुनिया के बदले में अपने लिए दोज़ख की आग खरीद रहे हो और जिस जन्नत के तुम दावे करते रहते हो उस जन्नत का सरदार तुम मैं हुसैन हूँ। इसके बाद जैसे ही मलून शिमर ने ये देखा कि हुसैन ऐसी बातें करके अभी भी इन लोगों की इस्लाह करने की कोशिश कर रहा है और यजीद की बैत करने से साफ साफ इनकार कर रहा है, तो शिमर फौज यजीद को ये हुक्म देता है कि जाओ और जाकर हुसैन के सर को काट कर मेरे पास लाओ ताकि मैं हुसैन के कटे हुए सर को यजीद की बैत ना करने का अंजाम बताऊं। तो जैसे ही फौज यजीद नवासे रसूल को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ती है तो फिर तारीख भी ये लिखती है कि एक तरफ 40,000 का लश्कर, एक तरफ अकेला हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद करते हुए यजीदियों को वासिले जहन्नुम करता रहता है। रसूल अल्लाह का नवासा अकेले ही जमीन करबला में कोहराम बर्पा कर देता है। जैसे ही फौज यजीद ये देखे कि हुसैन एक एक करके हमें कत्ल ही करता जा रहा है तो फौज यजीद के कुछ लश्कर वहां से भागने लगते हैं। जैसे ही शिमर अपने लश्करों को वहां से पीछे भागते देखता है तो जोर जोर से ये कहने लगता है कि आए लोगों, ये अली का बेटा है, अब्बास का भाई है, अगर इसे कत्ल करना चाहते हो तो दूर चले जाओ और दूर जाकर इस पर तीरों की बारिश करो। करबला की जमीन पे हर तरफ कोहराम बर्पा हो जाता है। अकेला हुसैन शेर की तरह हजारों का मुकाबला करता रहता है। फौज यजीद ये सब देखकर वहां से दूर भागने लगती है और दूर जाकर अकेले हुसैन पे हजारों तीरों की बारिश करने लगती है। फौज यजीद अकेले हुसैन पे इस कदर तीरों की बारिश करती है कि जैसे ही नवासे रसूल का जख्मी जिस्म घोड़े से नीचे गिरता है तो आपका जिस्म ना घोड़े की दी पे होता है और ना अल्लाह की ज़मीन पे। तारीख ये लिखती है कि जैसे ही नवासे रसूल घोड़े से नीचे आते हैं तो आपके जिस्म पे 113 तीरों के बार पोशीदा होते हैं। इमाम की मदद को ना कोई कूफे से आता है, ना शाम से आता है, ना मक्के से आता है और ना ही मदीने से आता है। बस गैब से एक आवाज आती है कि आए हुसैन, ऐ हुसैन, हमने तेरी अजीम कुर्बानी को कबूल किया। आए हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। बस नवासे रसूल करबला की तपती जमीन पे सिजदे में अपना सर रखते हैं और अल्लाह की पाक ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि हाय मेरे मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल किया, तेरा शुक्र है कि तूने मेरी इस कुर्बानी को कबूल किया। इसके बाद शिमर मलून आगे बढ़ता है और जिस गर्दन पे अल्लाह के रसूल प्यार करते थे उसी गर्दन पे तलवार का वार करके सिजदे में इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर देता है। आपका सर नेज़े पे चढ़ाया जाता है, आपके सर की तौहीन की जाती है, आपके जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जाते हैं। रसूल अल्लाह की बेटियों को सरेआम नंगे सर बाजारों में घुमाया जाता है। अल्लाह के नबी के खानदान की बेहुरमती की जाती है, बेदर्दी से तजलील की जाती है। जिस हुसैन की इज़्ज़त को अल्लाह अपने कुरान में बयान करता रहा, अल्लाह का रसूल अपनी हदीसों में बयान करता रहा, मुसलमान उसी हुसैन की इज़्ज़त को पमाल करते हैं और उसी हुसैन को करबला की तपती ज़मीन पे 3 दिन तक
भूखा प्यासा रहने के बाद बेदर्दी से शहीद कर देते हैं। और इसके बाद फिर उस वक्त के लोगों ने भी ये देखा कि जिस अल्लाह के घर की हुर्मत को बचाने के लिए हुसैन इब्न अली मक्के को छोड़ते हैं, यजीद उसी अल्लाह के घर पे आग के पत्थरों की बारिश करता है, अल्लाह के घर काबा की तस्लील करता है, 10,000 मुसलमान औरतों की इज्जतों को लूट कर मस्जिद नबवी में अपने घोड़े बांधता है और मस्जिद नबवी की तौहीन करता है, मस्जिद नबवी की तस्लील करता है। बस मुसलमानों के वो मुर्दा ज़मीर अपनी माँ बहनों और बेटियों की इज्जतें छिन जाने के बाद जागने लगते हैं। लेकिन अफसोस कि जिस तरह लोगों ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब का साथ ना दिया, बिल्कुल इसी तरह उस वक्त के लोग नवासा रसूल हुसैन इब्न अली का भी साथ नहीं देते। लेकिन हुसैन इब्न अली का कटा हुआ सर नौके नेज़ा पर भी कुरान की तिलावत करके अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करता रहता है और लोगों को ये बताता रहता है कि आए लोगों, जिस मकसद के लिए आदम को तख्लीक किया गया, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को इस जमीन पे भेजा, मैंने उस ला इलाहा इल्लल्लाह के मकसद को पूरा करने के लिए अपना घर बार, अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया है। आए लोगों, अल्लाह के सच्चे दीन पे चलो, बातिल जितना भी बड़ा हो हमेशा बातिल का मुकाबला करो, क्योंकि अनकरीब अल्लाह तुम्हें वो मुकाम अता करेगा कि जिस मुकाम के लिए अल्लाह ने तुम्हें इस ज़मीन पे भेजा है। दूसरी तरफ जब शैतान मैदान करबला में ये सब देखता है तो अल्लाह से कहता है कि है मेरे मालिक, अगर तूने इस तरह का आदम पैदा करना था तो मुझे पहले बता देता, मैं कभी भी आदम को सिजदा करने से इनकार ही ना करता। बस नवासे रसूल हुसैन इब्न अली अल्लाह के दीन हक के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अपने शीरख्वार बच्चों से लेकर अपने जवान बेटों तक उनकी लाशों को अपने हाथों में उठाकर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके कयामत तक के इंसानों के लिए ये हक की ऐसी मिसाल कायम कर देते हैं कि जिस मिसाल की वजह से आज हर इंसान हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद की सदाएं बुलंद करता रहता है। और इसी तरह नवासा रसूल हुसैन इब्न अली ने हक को जिंदा किया और बातिल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। सलाम हो करबला के अजीम शहीदों पर, सलाम हो रसूलुल्लाह की नवाजियों पर, और सलाम हो शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर।